प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और केमिस्ट्री क्लास में। विद्यार्थियों, यह अपनी क्लास बीएससी प्रथम वर्ष की है और बीएससी प्रथम वर्ष में हमने जो थर्ड यूनिट है वो लगभग कवर कर ली है। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है वैन डर वाल फोर्सेस। इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अर्थात हाइड्रोजन बंध के बारे में बात की थी। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के बारे में देखा था। तो आज हमारा टॉपिक है वीक केमिकल बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। एक तो इंटरमोलिकुलर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का बंध होता है, और ये भी हम जानते हैं कि जहाँ कोई भी प्रकार का बंध नहीं है, धात्विक नहीं है, कोवलेंट नहीं है, आयनिक नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन उनके बीच में भी कहीं ना कहीं आकर्षण है। जैसे इनर्ट गैसेज हैं, अक्रिय गैसें हैं, उनके बीच के अंदर भी एक दूसरे से यूँ तो है नहीं कि एक नियॉन का अणु यहाँ है, एक नियॉन का अणु यहाँ से बहुत दूर है। उनके बीच में हल्का सा आकर्षण जरूर है, अर्थात इस आकर्षण को वीक अट्रैक्शन कहते हैं और इस वीक अट्रैक्शन का नाम दिया गया था वैन डर वाल फोर्सेज। लेकिन ये वैन डर वाल फोर्सेज हमेशा अलग अलग अणुओं के मध्य होता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर अट्रैक्शन बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड नेबरिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर अंडर influence ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, although in some cases those attractions are very weak. These intermolecular interactions are known as van der Waals forces. बहुत वीक होते हैं। Even the gas like hydrogen H2, if the molecules are shown down by cooling the gas, the attraction become large enough so that molecule will stick together and form a liquid and then a solid. The attraction between the H2 molecules are so weak that the molecule have to be cooled on 21 Kelvin, that is the very low temperature, that is minus 252 degrees centigrade. Therefore, the attraction are enough to form liquid hydrogen. Helium's intermolecular attractions are even weaker. The molecules won't stick together to form a liquid until the temperature drop, that is the 4 K, minus 269 degree centigrade. उन्होंने 1 K is to minus 273. Attraction are electrical in nature. In a symmetrical molecule like hydrogen, however, it doesn't seems to be any electrical distortion to produce positive or negative parts. But that's only true in the average. In the next figure, you know said that the symmetrical molecule H2 is represent. Here you see H2 is symmetrical molecule. One H and other is 1H plus plus. On average, there is no electrical distortion. But the electrons are mobile, and at any one instant, they might find themselves towards one end of the molecule. This end of the molecule becomes slightly negative, partially negatively charged, minus del. The other end will be temporarily short of electrons and so become slightly positive, del positive. Here you can say del negative, here you can say del positive. Temporary dipole of H2. An instant later, the electrons may move the other end, reversing the polarity of the temporary dipole of the molecule. This phenomena even happen in monoatomic molecule of rare gases like helium, which consist of a simple atom. If both the helium electrons happens to be on one side of the atom
At the same time, the nucleus is no longer properly covered by electrons for the instant. ये हीलियम का है अणु, दो इसमें नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिवली पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो टेम्पररी डाइपोल ऑफ ये हीलियम का द्विध्रुव है। हाउ टेम्पररी डाइपोल गिव इंटरमोलिक्यूल्स बॉन्ड, जो टेम्परेरी डाइपोल बनते हैं ना वही इंटरमोलिक्यूल बॉन्ड देते हैं। चित्र में भी आपको दिख रहा है ओरिजिनल टेम्पररी डाइपोल, इधर वाले का देख लीजिए प्लस डेल, और ये नॉन पोलर डाइपोल है, और इसमें देख लीजिए दोनों तरफ डाइपोल है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो ये बीच के अंदर अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन ही डाइपोल वंडरवॉल है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या इसको हम कह सकते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। A molecule which has a temporary polarity approach another molecule which happens to be non-polar at that moment. The electrons from the non-polar molecule will be attracted by the slightly positive end of the polar molecule. This is how an induced dipole is forming. तो ये यहाँ डाइपोल फॉर्मिंग हो रहा है। ये यहाँ डाइपोल फॉर्मिंग हो रहा है। ये तो है नॉन पोलर और ये है ओरिजिनल टेम्पररी पोलर। तो ये टेम्पररी पोलर ओरिजिनल और ये इंड्यूस्ड पोलर, इसके कारण इंड्यूस हुआ में, इंड्यूस होते ही ये यहाँ पर अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन ही क्या है? वंडरवॉल अट्रैक्शन है। एन इंस्टेंट later the electrons in left hand molecule can move up the other end, so they will repel the electrons in the right hand molecule. The polarity of both molecules reverses, but there is still attraction between del minus and del positive, and the long as two molecules stay close to each other, the polarities will continue to fluctuate in synchronization so that the attraction is always maintained. This phenomena can occur over huge number of molecules. The following diagram shows the whole lattice of the molecules could be held together in a solid. तो ये भी चित्र यही दिखा रहे हैं, प्लस माइनस जहाँ है वहाँ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। Molecule distribution in a solid. The interaction between temporary dipole and induced dipole are known as dipole van der Waal dispersion force. हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी कर लिया था, ये भी एक वीक इंटरेक्शन ही है, और ये बता दिया हमने। विद्युत ऋणता जिसकी ज़्यादा होती है और उसके पास हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो एक तरफ हाइड्रोजन तो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड और दूसरी तरफ सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, इसको हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड कहा था, जैसे H2O के अंदर दिखा रखा है चित्र के अनुसार। इन ए सॉलिड वाटर ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉलिड वाटर अर्थात बर्फ़ की बात कर रहे हैं। विद अदर 4 सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, एक के चारों ओर 4 और सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिएटिंग 3D स्ट्रक्चर ऑफ द आइस एज ए रिजल्ट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट H2O इज हायर देन दैट द NH3 और HF। ये भी प्रश्न कई बार पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है NH3 HF से, तो उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। In the case of ammonia, the amount of hydrogen bonding is limited by the fact that each nitrogen atom has only one lone pair. As well, in hydrogen fluoride, the number of hydrogen atoms is not enough to form a 3-dimensional structure. तो ये हमारा जो वीक अट्रैक्शन था उसके बारे में डिस्कशन था, उसके बारे में हमने देखा। तो आज हमारा ये वीक अट्रैक्शन का पोर्शन भी ख़त्म होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्सेस थे। हम ये जानते हैं कि वान डेर वाल फोर्सेस किसी भी प्रकार से बॉन्ड नहीं है, महज एक अट्रैक्शन है, और वो डाइपोल इंड्यूस होता है।
और डाइपोल भी कौन कौन से पॉजिटिवली, डेल प्लस और डेल माइनस के बीच। तो इनर्ट गैसेस के अंदर ये पाया जाता है। तो बच्चों आज अपनी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चौथे यूनिट के अंदर जाएंगे। चौथे यूनिट के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, फिर इनर्ट गैसेज है। यहाँ आकर के हमारे सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग लगातार देखने में आ रहा है, आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आप पूरा लेक्चर देखें, उसको सुने, उसको समझें और उसके बाद में दिए गए PDF की सहायता से अपने नोट्स बनाएं और याद करें और उसके बाद दिया गया असाइनमेंट बिना देखे लिखें। आपके लिए समय भी प्रचुर मात्रा में है। कोविड-19 की पेंडेमिक टाइम चल रहा है, घर से बाहर निकलना नहीं है, घर पे रहना है। घर पे रहना है तो ऑनलाइन लेक्चर देख करके अपना काम पूरा करते रहो, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम होना ही होना है। ऐसा नहीं कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बार भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो थ्योरी की क्लासें आपको ऑनलाइन मिल रही है, उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। आनंदम प्रोग्राम भी चला रखा है। इस आनंदम प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी गाइडलाइन हमारे को ऊपर सरकार से आ रही है, हम उसको यहाँ आपके ग्रुप में भेज देते हैं। तो आप उसके अनुसार भी काम करें, क्योंकि आनंदम के अंदर आपको स्वयं को काम करना है, अपने मन पसंद का काम करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और मुझे मेरे मेल पे भेजनी है। आप लोगों में देखने में आ रहा है बहुत कम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मार्क्स अब की बार मिलेंगे आनंदम के अंदर। और अपने कमिश्नरेट का ऑर्डर है, कमिश्नर आयुक्तालय कॉलेज एजुकेशन जयपुर से ऑर्डर है, प्रिंसिपल डूंगर कॉलेज का ऑर्डर है। जब भी कोई नया ऑर्डर आता है तो मैं ग्रुप के अंदर सर्कुलेट कर देता हूँ। तो उस ऑर्डर के अनुसार और मेरे कहे अनुसार अपना प्रोजेक्ट अपनी मनपसंद का हर दिन का आप लिखें और उसको मुझे मेल करें। मेरा मेल एड्रेस आपको मैंने काफ़ी बार बता भी दिया, ग्रुप में भी डाल दिया। काफ़ी बच्चे ग्रुप में पढ़ते भी नहीं हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ बच्चे ग्रुप छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ आपका स्वयं का, क्योंकि आप खुद इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। तो कृपया मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आपको हम जैसा पढ़ाते हैं ऑनलाइन आप उसे पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, नोट्स बनाएं, याद करें और असाइनमेंट लिखें और आनंदम डायरी हर दिन कंप्लीट करें। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ, कोविड से आप बचे रहें। कोविड से बचे रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो होता है घर पे रहना। यदि आप घर पे रहोगे, स्वयं के घर पे रहोगे, दूसरे के घर पे नहीं, स्वयं के घर पे रहोगे, तो आप कोविड से बचे रहोगे। क्योंकि यदि बाहर जाओगे तो बाहर तो कोविड है, आप कोविड लेकर के आ जाओगे। इसलिए आप लोग घर से बाहर ना निकलें। यदि आपको इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना है तो फुल एडवाइजरी का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। अपने साथ मास्क, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगा के जाएं। मास्क लगाने के बाद मास्क को बार बार हाथ से ना छुएं। अपने हाथों को हाथों के साथ बांध करके रखें या अपनी जेबों में डाल के रखें। इसके अलावा मोबाइल को भी बार बार अपने हाथों से टच ना करें। और बाहर आपके पास अपने अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइज़र अपने साथ लेके जाएं। और घर पे आते ही आप साबुन से 15 से 20-25 सेकंड तक अपने हाथ को वॉश करें। हाथ वॉश अच्छी तरीके से गर्म पानी के साथ करो, क्योंकि हमें पता है कोविड वायरस जो होता है वो नाक के रास्ते से इजीली फेफड़ों तक चला जाता है और फेफड़ों तक जाने के बाद में फेफड़ों को वो हमारे को डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारे को काफ़ी परेशानी उत्पन्न करनी पड़ सकती है। तो आप लोगों को मेरा यही कहना है कि आप स्वयं भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और बचे हुए हो, घर बैठे हो, पढ़ाई भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।